Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Yesterday we have learned about indicators. Today we are going to discuss about acids. All of us had eaten various fruits, various vegetables which are sour in taste. For example, oranges which are sour in taste. Tomatoes, they are also sour in taste. Apples, sour in taste. ठीक है. Lemons, they are also sour in taste. Why these fruits or vegetables have sour taste? Because in these items various chemical substances, mainly acids, are present, due to which they have sour taste. For example, in lemons citric acid is present. Oranges, citric acid is also present in oranges. In tomatoes, oxalic acid is present, and in apples, malic acid is present. These chemical substances which have sour taste are known as acids. Acids, those chemical substances which have sour taste. For example, यहाँ पे हमने देखे citric acid है, oxalic acid, malic acid, formic acid. This is the classical concept of acids, classical definition of acids. What is their definition? Acids are those chemical substances which have sour taste and turns blue litmus solution to red. For example, malic acid, citric acid, acetic acid, formic acid, etc. Classical definition of acids is that those chemical substances which have sour taste and turns blue litmus solution to red. For example, malic acid, citric acid, acetic acid, formic acid, etc. After this classical concept of acids, various scientists have come forward from all over the world, and they have put various definitions of acids. First of all, in 1884, a scientist from Sweden, his name was Arrhenius. He also put a theory which is known as Arrhenius ionization theory. In 1884 किस साल में 1884 में स्वीडन का एक केमिस्ट था जिसका नाम था आर्हिनियस. उसने एक थ्योरी दी. उस थ्योरी का नाम क्या है? आर्हिनियस आयोनाइजेशन थ्योरी. 1884 स्वीडन का रहने वाला था. ठीक है, उसका नाम क्या था? आर्हिनियस. उसने एक थ्योरी दी थी
उस थ्योरी का नाम क्या है? आर्हीनियस आयोनाइजेशन थ्योरी। इसी थ्योरी की बुनियाद पे उसने एसिड्स को डिफाइन किया। पहले हम देखेंगे कि थ्योरी क्या दी थी उसने। जो उसने थ्योरी दी थी उसमें जो मेन पोस्टुलेट था, मेन आइडिया था, दैट वाज व्हेन an electrolyte is dissolved into water, it yields positively and negatively charged ions. When an electrolyte is dissolved in water, it dissociates and produces and yields positively and negatively charged ions. जो उसने थ्योरी दी थी, थ्योरी में जो मेन पोस्टुलेट था, दैट वाज जब एक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता है वाटर में, वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोशिएट होता है एंड प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आयंस एंड negative ions. On the basis of this theory, he have defined acids. He defined acids as those chemical substances which contains hydrogen. Definition of acids put forward by Arrhenius. What is definition? An acid is that chemical substance which contains hydrogen and which when dissolved into water yields H positive ions. क्या डेफिनेशन है उसकी? एन एसिड इज दैट केमिकल सबस्टेंस, वो केमिकल सबस्टेंस जिसमें प्रेजेंट क्या होगा? हाइड्रोजन। इतना ही नहीं, जब हम उस केमिकल सबस्टेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट केमिकल सबस्टेंस यील्ड्स H पॉजिटिव आयंस। दैट केमिकल सबस्टेंस इज नोन एज एसिड। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, आराम से देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, when it is dissolved in water H2O, it gives us H positive plus Cl negative aqueous. ठीक है, one more example, HNO3 nitric acid plus water, it gives us H positive aqueous plus NO3 negative aqueous. HCl, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड,
इसमें भी प्रेजेंट क्या है, हाइड्रोजन। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, HCl को या नाइट्रिक एसिड को, इट डिसोशिएट्स, कौन, दिस केमिकल सबस्टेंस, इट स्प्लिट्स एंड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन। इसने यहां पे क्या दिया, H पॉजिटिव आयन। HNO3 इसने क्या दिया, H पॉजिटिव आयन। दिस इज नोन एज एसिड। एसिड that chemical substance which contains hydrogen and which when dissolved in water yields H positive ions। यहां पे इसकी एक लिमिटेशन थी, इससे ये बताया कि it yields H positive ions, like hydrogen ions, but H positive ions do not exist as such alone। ये अकेले ऐसे नहीं रहता है, जो यहां पे H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ, ठीक है, इट कंबाइन्स विद वाटर, इट प्रोड्यूसेस H3O पॉजिटिव, जिसको हम लिखते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था, उसने भी डिफाइन किया एसिड्स को इन द ईयर 1923 में। एक और साइंटिस्ट आया था जो डेनिश साइंटिस्ट था, जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड लाउरी, concept of acids। डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। पहले हमने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी जो आपको याद रखनी है, उसके बाद जो हमने डेफिनेशन पढ़ी दैट इज ऑरिजिनस डेफिनेशन, ये भी आपको याद रखनी है। बाकी जो हम डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। इसने डिफाइन किया एसिड्स को, ही डिफाइंड, इसने क्या बोला, एन एसिड इज दैट केमिकल सबस्टेंस, वो केमिकल सबस्टेंस विच donates a proton, जो एक प्रोटॉन को क्या, which donates proton and a base is that chemical substance which accepts proton on the base of proton। इसने डिफाइन किया एसिड को। इसने क्या बोला, इसका मतलब क्या है, वो केमिकल सबस्टेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर, उसको हम कहते हैं एसिड, ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, दैट इज बेस। प्रोटॉन डोनर इज नोन एज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नोन एज बेस। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे देखेंगे प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्ट। आप देखिए यहां से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड when it combines with water H2O it gives us HCl। it donates proton to water। in this reaction HCl it donates proton to water and it becomes
H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव। आप देखिए यहां पे HCl ने क्या किया, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, किसको दिया, वाटर को। देन HCl क्या है, एसिड। वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, वाटर बिकम्स बेस। H3O पॉजिटिव इट कैन ऑल्सो डोनेट, ये भी डोनेट कर सकता है क्या, प्रोटॉन। ठीक है, दैट मीन्स ये भी क्या है फिर, एसिड। क्लोरीन, इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव, दैट मीन्स इट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज इट इज ए बेस। अगर हम देखेंगे एक ही रिएक्शन में टू पेयर्स ऑफ एसिड एंड बेस, यहां पे देखिए दिस एसिड, यहां से बेस ये है, ठीक है, वन पेयर ऑफ एसिड एंड बेस, दिस इज अनदर पेयर ऑफ एसिड एंड बेस। एक ही रिएक्शन में टू पेयर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, विच आर नोन एज कंजुगेट एसिड्स एंड बेसिस, इनको हम बोलते हैं क्या, कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेसिस। HCl एसिड है, ठीक है, आपको बोलना होगा इसकी कंजुगेट बेस कौन है, Cl नेगेटिव, दिस इज बेस। यहां से एसिड कौन है, H3O, इसका कंजुगेट क्या है, बेस का H3O। दिस इज नोन एज Bronsted-Lowry concept of acids. One more example here is that HCl hydrochloric acid plus NH3 ammonia, sorry, NH3 is ammonia. HCl, it donates a proton to NH3. HCl, it donates a proton to NH3 and it becomes NH4 positive. शाबाश। एंड Cl नेगेटिव। जरा आप बोले यहां पे किसने डोनेट किया प्रोटॉन को, HCl ने प्रोटॉन को क्या किया, डोनेट, दैट इज ये क्या है आप, एसिड। किसको दिया प्रोटॉन, NH3 को, NH3 क्या है फिर, बेस, शाबाश। NH4 चार्ज क्या है, पॉजिटिव, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट कर सकता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फिर ये क्या बनेगा, NH3, दैट इज इट ऑल्सो है एसिड। क्लोरीन विथ नेगेटिव चार्ज, इट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, दैट इज इट विल बिकम ए बेस। आप देखिए एसिड HCl इज एसिड, ठीक है, इसकी कंजुगेट बेस कौन है, बेस क्या है यहां से, Cl नेगेटिव, NH3 दिस इज बेस, कंजुगेट एसिड क्या है, NH4 पॉजिटिव। यानी कि एक ही रिएक्शन में टू पेयर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उनको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड्स एंड बेसिस। This was all about the definitions of acids. We have read about the classical definition of acids and some more definitions like Arrhenius concept of acids, then Bronsted-Lowry concept of acids. इसके बाद एक और concept है that you will read in the higher classes, that is Lewis concept of acids. I hope आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम।